Okay guys, now let us discuss the next topic, current in conductor. Means if we have a conductor, then how the current is considered inside the conductor. Okay, so it's very simple topic. If you consider any electric field like this, okay, and you put the charge into the electric field, suppose consider you put the electron into this electric field. Okay, so how much force is applied on this charge? So F is equal to what? Q, as we know. If you consider any charge place inside the electric field, then this much of force is applied on this. Okay, so by this way, total electric field as electric force on electron, if you consider electron, then Q is replaced by minus E. So F is equal to what? Minus E. So electron is moves in opposite direction of electric field. So let me write here this electric field is moves in opposite direction because force is in opposite direction. So electrons are try to moving inside this electric field, means under the effect of this electric field. इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होना स्टार्ट कर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. As you consider, this is you just apply this electric field in a conductor. आप ऐसा मान के चलो, आपने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो किस में किया हुआ है? कंडक्टर में. So let's consider that is what? Conductor. So inside the conductor, if you consider like any solid conductor, aluminium, copper, like this, okay, so there is a large number of molecules are present. If you consider the small amount of water, then there is approximately 10 raised to 22 to 10 raised to 23 molecules are present. Okay, in 18 gram of water, number of molecules of water is equal to Avogadro number, as we know. Similar way, if you consider any metal here, so in a small piece of metal, there is a large number of electrons, very large number of electrons are present over there. Okay, so here the number of electrons are present. So this all electrons are try to move in a conductor. This all electrons are try to move in a conductor under the influence of this force which is produced due to this external field. अगर आप कैसे भी एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करते हो, कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दो एडिशनल, या ऐसे अगर एक कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का, तो आप ऐसे सिलिंड्रिकल शेप की एक डिस्क रख दो, वहां पे पॉजिटिव क्यू होना चाहिए. कितना होना चाहिए? पॉजिटिव क्यू. राइट हैंड साइड नेगेटिव क्यू की डिस्क रख दो, माइनस की, ऐसे सर्कुलर. So due to this positive charge and negative charge, this is minus Q. So some electric field is produced by this way, positive to negative. It means this all electrons are moving in opposite direction of electric field, and thus electrons are constitutes the current. Okay, इस इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होंगे, इसलिए कंडक्टर में करंट फ्लो होगा. ओके, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो फिर करंट ऐसे इसमें फ्लो होगा. कितना होगा? दैट्स मिस वी डिराइव दिस रिलेशन लेटर ऑन, बट दिस करंट इज फ्लो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो बाय दिस वे इफ यू कंसिडर द सिचुएशन इन अ कंडक्टर, then positive ions are fixed, bounded. Okay, you just see the same figure. आप ये सेम फिगर को मान के चलो. ओके, तो यहाँ पे सभी जगह पे जो पॉजिटिव आयन है वो तो मूव होने वाले नहीं है, क्योंकि बाउंड कंडीशन में दिस पॉजिटिव आयंस आर इन अ बाउंड कंडीशन. ओनली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन अ ऑर्बिट. Not all electrons, you must be understand, all electrons are not free in orbit. Okay, only this electrons is which one? Only free electron. जो भी electrons यहाँ पे है वो कौन से मूव होने वाले हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर. ए जो इलेक्ट्रॉन है वही मूव होने वाले हैं, और ए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक. So here the two cases are possible. Maybe external field is present, maybe external field is absent. यहाँ पे दो केस पॉसिबल, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है. तो प्रेजेंट में है तब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, तो अगर एब्सेंट है तो भी इलेक्ट्रॉन मूव होंगे. सो इन ईच एंड एवरी कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग बिकॉज दे आर फ्री. सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग इनसाइड द कंडक्टर. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग inside the
conductor. Let's we understand this both this condition when you just apply this electric field and when you are not applying this electric field. Okay, so we have a two cases. इलेक्ट्रॉन तो मूव होने वाले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ही करंट ऐसे फ्लो होगा। तो दोनों केस डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट पास होता है। देखो सपोज यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मान के चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। ओके, यहाँ पे भी सेम फिगर ही ड्रॉ करते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। चलो सेम फिगर है ना। फर्स्ट केस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट एंड सेकंड केस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। मतलब फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी की वजह से, मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, इफ द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ड्यू टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव होने वाले, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन मूव होंगे वो तो मतलब रैंडम होगा, क्योंकि हीट एनर्जी से मूव हो रहे हैं। तो हीट एनर्जी से मूव हो रहे तो रैंडम डायरेक्शन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, सो कंप्लीटली रैंडम मोशन। सो ड्यू टू दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेट करंट बिकम 0। मतलब यहाँ पे पूरी रैंडम मोशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा ही, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। कितना है 10⁻22 to 10⁻23 इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के स्मॉल अमाउंट में काफ़ी सारे मोलिक्यूल्स है, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है और रैंडम डायरेक्शन में मूव कर, क्यों? क्योंकि दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, है ना। और हीट एनर्जी से मूव हो रहे तो कंप्लीटली रैंडमली मूव हो गए। सो दे आर मूविंग रैंडमली। अगर ये रैंडमली मूव हो गए तो फिर नेट करंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब इस टाइप के केस में करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि आपको कैसे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके फोर्स लगेगा तो एक साइड मूव होंगे और करंट कंसिडर होगा, ठीक है। सो इन दी व्हेन यू अप्लाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ओके पहले ओरिजिनल डायरेक्शन ड्रॉ करते जो यहाँ पे थी वही। तो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए जो है इस डायरेक्शन में है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ए इनिशियल ऐसा था। मीन्स व्हेन यू नॉट अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ you apply the electric field. So under the effect of this electric force, this all electrons are try to move in opposite direction of electric field. Okay, so ये जो electrons है वो इस तरह से move होने starts होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो मूव होंगे ऐसे। देखो तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस साइड हो जाएगी? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन से दैट सम करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Some current is flow in the direction of electric field. Okay, and you must be not here. Suppose you apply the potential plus V here and you apply the potential 0 here. So that's just the example. So what is the potential difference? आप यहाँ पे V1 ले लो, यहाँ पे V2 ले लो। चलो, so potential difference delta V is given as electric field into length, as we know. So you remember this equation, potential difference across the कंडक्टर। अगर आपने इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डेल्टा वी अप्लाई किया हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ई इंटू एल। अगर यहाँ पे वी है, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ ई है तो ई इंटू
L, ठीक है। तो इक्वेशन भी याद रखना, एक्चुअली वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशन, बट यू मस्ट बी रिमेंबर दिस इक्वेशन, डेल्टा V इज इक्वल टू इंटू L एंड potential difference V is equal to EL. Thus both equations are exactly same, okay, but generally we using this equation here, we directly write V is equal to potential difference. Okay, so you note this theory, then after we are just discussed means we are discuss the new topic which is related to the current and potential difference, that's all Ohm's law. First you note this, then after we discuss it. Okay guys, let me discuss Ohm's law, very important equation we have to derive here. And what is the actually statement of this one? If the current flowing through the conductor is I, कोई कंडक्टर है उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज व्हाट V. अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो भी अप्लाई किया वो V है, तो Ohm states that the V proportional to I, V is directly proportional to I, means you can say double is conductor. Okay, here thus you apply the potential difference between this point and this, means between the end points, consider X and Y. यहाँ पे आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो मान लो कि V है. हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X and Y. Okay, so PD is equal to V. So some current is flow through this conductor is supposed to be I. Then Ohm states that V proportional to I. If you eliminate this proportionality sign, you must be place one constant here. So here let's we write down constant. V is equal to R into I, where R is called a resistance of substance. जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस को हम R लेते हैं, ठीक है. सो ये वेल नोन इक्वेशन है और लोअर स्टैंडर्ड में आपने स्टडी भी किया हुआ है. सो V इज इक्वल टू IR. वी जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? If you consider the unit of resistance, then from here R is equal to V upon I. R is equal to what? V upon I. So V, unit of V is a volt and unit of I is ampere. So this is called a volt per ampere. That is the unit of a resistance. But very well known unit is what? Very well known unit is ohms. Okay, we call it is ohm and its symbol is like this. This is the unit of resistance. 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. Okay, so इसका डायमेंशन फॉर्मूला होमवर्क में करना है. डायमेंशन फॉर्मूला आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, घर पे. So that is a one task for all of you. Now resistance, if you consider resistance, then resistance of any conductor is depends on a material, dimension and temperature of substance. जो भी रेजिस्टेंस सब्सटेंस का है और मटेरियल पर डिपेंड करता है. किससे डिपेंड करता है? मटेरियल पे. सेकंड किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे, मतलब वो कैसा है. लेकिन हमने यहाँ पे एक डायमेंशन लिया. देखो, द एरिया ऑफ द सब्सटेंस इज A एंड लेंथ ऑफ दिस इज व्हाट? L. सो area and length is denotes a dimension. Okay, one another terms we have to record here is what? Material. Which material? Aluminium, copper. Okay, which material you have to use in the flow of current. Okay, so material, dimension and temperature also. We discuss this case, temperature dependency of resistance, later on. Okay, now we discuss about only this one. Let me start with the first one. So we just take two cases. Consider the case 1. If you consider the length becomes double, then what happen on a resistance? अगर आपने लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे R का इक्वेशन क्या है? V अपॉन I. व्हाट इज द रेजिस्टेंस एक्चुअली? सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम दिस रूल इज व्हाट? V अपॉन I. रेजिस्टेंस इज व्हाट? V अपॉन I. अगर आपने लेंथ डबल की, लेंथ कितनी की? डबल की. यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. यहाँ से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है? मतलब आपने सीरीज में कोई ऐसे कंडक्टर यहाँ पे रख दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट के अक्रॉस कितना हो जाएगा? V. सेकेंड के अक्रॉस कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, क्योंकि सेम करंट है. तो आप A पॉइंट्स ले लो, अभी X यहाँ पे ले लो और यहाँ पे Z ले लो, क्योंकि यहाँ पे Y है. सो X to Y V पोटेंशियल डिफरेंस, Y to Z V पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस केस में रेजिस्टेंस को इस इक्वेशन से लिखो. चलो,
r in case of length is equal to what is potential difference across x z, because a एंड पॉइंट हो गए ना अभी, तो x z में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, v प्लस v, 2v हो गया, अपॉन करंट. सो करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज व्हाट, सेम I. सो 2v अपॉन i, बट v अपॉन i इज व्हाट r. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2r. सो लेंथ के केस में आपने लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया. If you just taken this length of the conductor, it becomes double, then resistance of this was also doubles. It means the simple case R is proportional to L. If you consider the length is becomes double, then R is proportional to L. Equation number 1. Now you consider the second. If you just take a half area of the original one, original area कितना लिया था A, तो आप यहाँ पे देखो मैंने हाफ कर दिया. सो यहाँ पे जो दो कंपाउंड्स ऐसे, यहाँ पे ए पॉइंट एक्स है और ए पॉइंट वाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहा वी. बट यहाँ ऊपर के कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, I/2. नीचे कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, I/2. ठीक है, तो पैरेलल में अगर ऐसे आपने दो एरिया हाफ कर दिया, तो फिर इस केस में करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इन केस ऑफ एरिया. एरिया के केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन करंट कितना जा रहा है, कोई एक को काउंट करो, ऊपर या फिर नीचे, एनी वन ऑफ दिस. ओके, सो करंट कितना जा रहा है, I/2. सो I/2. सो आंसर फिर क्या हो गया, 2v अपॉन i, बट v अपॉन i इज व्हाट एक्चुअली r. सो इस केस में भी आंसर आया 2r. बट यहाँ पे क्या किया था, लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस डबल हुआ, एरिया हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हुआ. ओके, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हियर एरिया बिकम्स हाफ, रेजिस्टेंस बिकम्स डबल. अगर एरिया हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हुआ. यहाँ पे length becomes double, then resistance becomes double, है ना. सो इसलिए हमने लिखा R प्रोपोर्शनल. लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट हुआ, हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हुआ, मतलब कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. हाफ एरिया किया तो फिर रेजिस्टेंस कैसा हो गया, डबल. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है. अगर आप दोनों इक्वेशन को साथ में रखो, दोनों इक्वेशन को साथ में रखो, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका आंसर क्या होगा, देखो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. R proportional to L upon A. So you just eliminate this proportionality sign. So R is equal to rho L upon A. So this is the equation where rho is called resistivity. Here rho is what, resistivity. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, Now you must be understand something from here. If you consider, see from here rho is equal to RA upon L. आप ऐसा सोचते हो, rho is equal to RA upon L, then area becomes double. It means resistivity becomes double. It's a completely wrong sentence. Okay, ऐसा हमने बोला, resistivity does not depends on the dimension of any substance. Resistivity is only depends on the temperature of substance. ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह से नोट कर लेना, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस. वो सब्सटेंस के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करते हैं. टेम्परेचर पे एंड मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, डिपेंड्स on temperature and material. यहाँ सी यहाँ पे अगर आपने लेंथ डबल की तो ऑटोमेटिक R डबल हो जाएगा, रो चेंज नहीं होगी.
है ना. सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस वन. Resistance of conductor is depends on this one, but resistivity does not. Okay, resistivity does not depends on a dimension, only it depends on the temperature of a substance and material of a substance. इस इक्वेशन में आता है, लेकिन अगर आपने ये डबल किया तो ऑटोमेटिकली आर हाफ हो जाएगा, तो अब रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है. उसका यूनिट डिराइव करते हैं रेजिस्टिविटी का. सो यू जस्ट राइट द अनदर नोट्स. यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो. चलो, तो इस इक्वेशन में से रो को फाइंड करो. सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. तो यूनिट फाइंड करने के लिए आर का यूनिट ओहम, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन एल मीन्स मीटर. सो मीटर मीटर कैंसल आउट. So unit of resistivity is equal to ओहम इंटू मीटर. ये रेजिस्टिविटी का यूनिट हुआ. इसका डायमेंशन फॉर्मूला होमवर्क में करना है. डायमेंशनल फॉर्मूला होमवर्क में करना है. ठीक है, तो ये होमवर्क में कर लेना, क्योंकि ओहम का तो डिराइव किया हुआ है, वही यहाँ पे रख के मीटर का ऐड करना है. क्लियर है. तो इस तरह से आप एक रेजिस्टेंस का इक्वेशन यहाँ पे ले सकते हो. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. एंड हियर यू मस्ट बी राइट वन अनदर नोट्स. हियर एल इज व्हाट एक्चुअली. सी, वी कंसिडर दिस इज द एल and current is also flowing this direction. So if you have any three dimensional objects, then length is always parallel. When you count this equation, when you just calculate the resistance of any substance by this equation, then length is parallel to the current flowing through it. Length is what? Length is considered always parallel to the, क्योंकि यहाँ से ऐसे भी लेंथ ले सकते हो. देखो, यहाँ से आप ऐसे जा रहे हो तो ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी लेंथ हो सकती है, लेकिन आपने कौन सी काउंट की है? मतलब लेंथ इज ऑलवेज पैरेलल टू द करंट एंड एरिया इज व्हाट? सी, परपेंडिकुलर टू द करंट. और करंट ऐसे जा रहा है और आपने एरिया ऐसे रखा है. सो यू मस्ट बी राइट वन अनदर नोट हियर. लेट्स बी राइट दिस नोट. दिस इज फर्स्ट नोट एंड हियर इट इज अ सेकेंड नोट. व्हाट इज लेंथ? जो भी इक्वेशन में, हाँ, जो भी इक्वेशन में वो लेंथ की बात कर रहा हूँ. सो लेंथ इज व्हाट? यू जस्ट टेक अ लेंथ पैरेलल टू करंट एंड यू जस्ट टेकिंग अ एरिया. आपने जो भी एरिया काउंट करना है वो परपेंडिकुलर टू करंट. करंट को परपेंडिकुलर, करंट जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो उसमें लेंथ को पैरेलल रखना है, एरिया को परपेंडिकुलर रखना है. ठीक है, तो जो भी आपका मतलब नेक्स्ट सेशंस में हम ये जो डिराइव करने वाले हैं काफ़ी सारे रेजिस्टेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, उसमें कंसेप्ट यूज़ होगा. ठीक है, तो लेंथ आपको कैसी रखनी है? पैरेलल. एरिया कैसा रखना है? परपेंडिकुलर. क्लियर है. तो पहले पूरा लो आप अपनी बुक्स में नोट कर लो, और ये जो पूरी थ्योरी हो एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना. ठीक है, नोट दिस. Okay guys, let's come to this next topic, vector form of Ohm's law. In this one we discuss about the scalar form. What is the scalar form? R is equal to rho L upon A. That is the resistance of any substance, where rho is the resistivity of a substance. You just consider that any substance, any conductor is like this. Okay, length of the conductor is supposed to be L and the cross section area of a conductor is supposed to be A. Length is always parallel to current, area is always perpendicular to the current, as we know. Now you apply some potential difference across this conductor. Let's consider between x, y. So what is the potential difference? So potential difference Vxy is equal to, suppose आपने कितना potential difference apply किया? V मान लो. And this V is what actually? You consider, suppose how much electric field is produced here? E. So V is also given as a E into L. Okay. EV रिलेशन प्रीवियस चैप्टर में से याद करो. V is equal to what? E into L. So due to this electric field, some electrons are moving in opposite direction of this one. So इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होने वाला, तो फिर इसमें करंट पास होगा. कैसा करंट पास होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ओके, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है.
तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, अगर करंट I फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस एज पर द ओहम्स लॉ? सो एज पर द ओहम्स लॉ दिस R इज रिप्लेस्ड बाय V अपॉन I and right hand side is as it is, rho L upon A. Now what is V? V is equal to E into L. So our answer is what? E into L upon I is equal to rho N upon A. So L cancel out and rearrange the term. Here L cancel out and rearrange the terms, then you get this answer. E by rho is equal to I upon A. Do you remember anything? What is I upon A? What is I upon A? I upon A is the current per unit area, called a current density. What we call it is current density. So you replace I upon A by the J. So J is equal to E upon rho, or J is equal to sigma into E, where sigma is what? What is the sigma? Sigma is called a conductivity of substance, is also called 1 upon rho. Okay, 1 upon rho is replaced here by a sigma. So sigma is called 1 upon rho, reciprocal of resistivity. The reciprocal of resistivity, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको याद भी रखना, ठीक है। तो यहाँ पे J कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर। सो एज वी डिस्कस इन प्रीवियस सेशन, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो आप इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो। सो वेक्टर फॉर्म, ओके। सो J इज इक्वल टू E अपॉन रो, और आप इस इक्वेशन को लिखते हो तो J is equal to sigma into E. So that is our finally vector form of Ohm's law. इस इक्वेशन का क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ. डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. What is the E here? Applied electric field. So write the ones not direction of current density is equal to direction of applied electric field. Note down this one. Direction of current density is equal to direction of applied electric field. ये दोनों डायरेक्शन सेम रहेगी, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ. सो राइट डाउन हियर इट इज अ J is equal to sigma E. इस इक्वेशन को ही वेक्टर फॉर्म बोलते हैं. ओके, सो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, then you just derive this relation by this way. Okay, let me write some of this note. Now first one here the physical property, second one is it, and third one is the dimension. Dimension सभी क्वांटिटी के होमवर्क्स में लिख देने हैं, ठीक है. तो होमवर्क्स में है, डायमेंशन होमवर्क में करना है. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम और वोल्ट पर एम्पीयर, एज वी नो. रेजिस्टिविटी क्या है? ओहम इंटू मीटर, और ये ओहम इज रिप्लेस बाय वोल्ट पर एम्पीयर, सो वोल्ट पर एम्पीयर इंटू मीटर. तो रेजिस्टिविटी. नाउ इट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज व्हाट? 1 अपॉन रो. तो इसका यूनिट अगर ओहम इंटू मीटर, इसका हो जाएगा 1 अपॉन ओहम इंटू मीटर. 1 upon ohm called a moho. 1 upon ohm called a moho. So moho into this 1 upon meter comes in a numerator. So meter inverse. So moho meter inverse. That is the unit of conductivity. Unit of conductivity. Moho is a unit of conductance. Moho is what? Unit of conductance. Okay. Here we discuss about the conductivity. Unit of conductivity is moho meter inverse, or it's also called a Siemens meter inverse. S means Siemens. Okay, so Siemens meter inverse, that is also unit of conductivity. तो आपको ये सभी यूनिट्स याद रखने हैं और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है. सो मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है, ठीक है. अब तो आप पूरा टॉपिक अपनी बुक्स में नोट कर लो. Okay guys, let us discuss the limitation of Ohm's law. What is the problem occurs when we use the Ohm's law in every cases. Okay, so as per the Ohm's law, V is directly proportional to I.
So it means V is equal to IR, directly proportional to the current. If V is increases, I is increases linearly, because this is the relation of linear मतलब straight line, y is equal to mx plus, ऐसा ही कुछ होगा. तो मतलब इस केस में अगर आप कंसिडर करते हो तो फिर v इज इक्वल टू आई आर में इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 0 और स्लोप कितना हो जाएगा r, ऐसा ही कुछ है. बट इन सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, if you consider some, actually you consider some cases, then v does not directly proportional to I. V does not directly proportional to I in everywhere, okay, because there is some changes is occurs. If you consider the simple case, directly good conductor, तो ये डॉट लाइन है, मतलब डॉटेड लाइन यहाँ पे जो है वो ओहम्स लॉ इंडिकेट करते हैं. स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना होना चाहिए r जितना. अगर आप ऐसा ओहम्स लॉ कंसिडर करते हो तो स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इज इक्वल टू आर, ऐसा होना चाहिए. बट अगर आप गुड कंडक्टर भी बात करते हो तो भी इतना वेरिएशन आता है, ठीक है. तो इन आइडियल केस वी अप्लाई द ओहम्स लॉ डायरेक्टली, बट इन सम केसेस where the some losses and everything is occurs, then here this variation in this case, okay. So that is the first limitation. Now the second limitation, relation between V and I depends on a sign of V. मतलब अगर आप इस केस की बात कर रहे हो तो आप वोल्टेज अगर रिवर्स करोगे तो फिर करंट ही रिवर्स होना चाहिए. वोल्टेज अगर आप ऐसा सोच लो कि आपके पास ऐसे कोई सर्किट है, ठीक है, अगर पहले ऐसे करंट जा रहा था तो अगर आपने V को रिवर्स किया, मतलब ऐसे कर दिया मान लो, तो फिर करंट ही रिवर्स होना चाहिए ना. अगर V को रिवर्स है तो करंट रिवर्स होना चाहिए, इक्वेशन सेम ही रहेगा. मतलब अगर इसमें आप V इज इक्वल टू आई आर लिखते हो तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस V इज इक्वल टू माइनस आई आर. लेकिन ऑन सम डिवाइसेस दिस रिलेशन डज नॉट फॉलो. ओके, सो रिलेशन बिटवीन V एंड I इज डिपेंड्स ऑन अ साइन. अगर साइन चेंज करते हो V की तो इसका मीनिंग I भी कुछ चेंज हो जाता है. फॉर एन एग्जांपल डायोड, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज रखते हो तो फिर करंट ये मिल रहा है मिली एम्पियर में. यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. अगर आप चेंज करते हो तो एज पर द ओहम्स लॉ. बट इन केस ऑफ डायोड, आप डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हो तो फिर साइन चेंज करते हो तो फिर करंट क्या हो जाएगा. देखो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर. अगर आप कोई वोल्टेज ले लो, यहाँ पे सपोज 0.2 वोल्ट है तो करंट इतना मिल रहा है, कितना, कुछ मिली एम्पियर. मान लो कि 5 मिली एम्पियर मिल रहा है, पता नहीं कोई भी ले लो, मान लो कि 5 मिली एम्पियर मिल रहा है. तो यहाँ पे काफ़ी सारा वोल्टेज, मतलब हायर वोल्टेज अप्लाई कर 2 वोल्ट, मान लो 2 वोल्ट भी अप्लाई करोगे तो भी करंट कितना मिलेगा, माइक्रो एम्पियर में रिवर्स डायरेक्शन मिलेगा, मतलब करंट भी चेंज हो जाएगा. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स चेंज इन आई इज डिपेंड्स ऑन अ साइन ऑफ V. आप पॉजिटिव अप्लाई करते हो साइन तो कुछ डिफरेंट मिलता है, नेगेटिव अप्लाई करते हो तो भी डिफरेंट मिलता है. एज पर दिस रूल ये नहीं हो सकता, ठीक है. तो यहाँ पे भी ओहम्स लॉ की लिमिटेशन है. सो एज पर द ओहम्स लॉ, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज देन करंट इज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है. डायोड में ऐसा होता नहीं है. तो फॉरवर्ड बायस में कुछ अलग रहता है, इसको फॉरवर्ड बायस क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड बायस एंड दैट्स कॉल्ड रिवर्स बायस. सो फॉरवर्ड बायस में कुछ अलग रहता है, रिवर्स बायस में कुछ अलग रहता है, ठीक है. सो दैट इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ दिस ओहम्स लॉ. कम्स टू द थर्ड वन. If we consider this next case, then relation between V and I does not unique. If you consider this relation, V is equal to IR. Okay, अगर आपने ये काउंट किया कि V is equal to IR होना चाहिए तो फिर V की कोई एक वैल्यू रखते हो for any value of V, you get the for any one value of V you get only one value of I. ये रहता है. अगर आपने वोल्टेज की कोई एक ही वैल्यू रखी है तो फिर करंट की भी आपको एक ही वैल्यू मिलेगी. लेकिन यहाँ पे V and I does not unique. मतलब what is the meaning of this? For the different value of V you get a same value of I. You get same value of I.
इसको मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है, यूनिकनेस नहीं है इसकी तरह। ओहम्स लॉ में यूनिकनेस है, यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल दैट इज अ चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इन GaAs, इन GaAs सेमीकंडक्टर, इन GaAs सेमीकंडक्टर। ओके, तो आप मान लो कोई पॉइंट्स ले लो, कोई भी, चलो ऐसा। सो यहाँ पे कोई वोल्टेज है V2, यहाँ पे कोई वोल्टेज है V1, लेकिन करंट तो सेम ही है। देखो I1 इज इक्वल टू I2। सो एज पर दिस रूल अगर आपने वोल्टेज चेंज किया तो फिर करंट चेंज होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, देखो। सो दिस यूनिकनेस डज नॉट फॉलोस इन दिस सिचुएशन, सो दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ दिस वन। एंड हियर दैट्स अ नॉन लीनियर रीजन, मतलब यहाँ पे कुछ लीनियरली चेंज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे लीनियरली चेंज हो रहा है। This relation is a straight line, means linearly, and that is a non-linear region. So it is also a limitation of the Ohm's law. This is a practical case. This one is also practical correct. This one is also practically correct. So here Ohm's law does not obey it. So in this case Ohm's law follow नहीं होता है, वहाँ पर Ohm's law का obey नहीं होता, ठीक है। So this is the limitation of this one. Why this type of situation is occurs that does not understand by the using of a Ohm's law. So Ohm's law well followed, well obeyed in a conductor. अगर आपके पास कंडक्टर है तो अप्रोक्सीमेट Ohm's law है वो ओबे होगा, लेकिन ऐसे कुछ सेमीकंडक्टर केस लेते हो तो फिर Ohm's law ओबे नहीं होता है, ठीक है। सो Ohm's law वेल फॉलोड इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, क्योंकि ये लाइन देखो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, स्मॉल वेरिएशन है, तो इस केस में आप Ohm's law फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप सेमीकंडक्टर केस में Ohm's law फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एक और कैसे नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यू ड्रॉ द स्लोप समवेयर हियर एनीवेयर, तो आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, देखो। सो वी कॉल इट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, वी कॉल इट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ओके। एंड दिस फुल रीजन इज अ नॉन लीनियर, दिस फुल रीजन इज अ नॉन लीनियर। सो हियर द Ohm's law does not obey. सो दस आर द लिमिटेशन ऑफ द Ohm's law, ठीक है। तो पूरा टॉपिक आपकी बुक्स में नोट कर लो। ओके गाइस, लेट मी सॉल्व द एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? R is equal to rho L upon A. Okay, so what is this example? First example number 3.6 from the NCERT textbook. Problem statement is a negligibly small current is passed through the wire of length 15 meter. So length of the wire is 15 meter. Here the given data. Uniform cross sectional 6 into 10 raised to minus 7 meter square. So area is equal to 6 into 10 raised to minus 7 meter square. And the resistance is 5 ohm. So resistance is equal to 5 ohm. So find the resistivity of this material. So हमें resistivity material की चाहिए. So these are the given data. So equation is known. See, resistance is given as a R is equal to rho L upon A. Okay, so find the rho from this one. So rho is equal to R into A upon L. So all those data are given to it. So put the value into this equation and find the answer. So remaining calculation is in homework. आप ऐसे इसको solve कर सकते, ठीक है। नोट कर लो एग्जाम्पल को। Okay guys, let's come to this next example from the textbook exercise. Example number 3.16. What is the problem statement? Two wires of equal length. So here the two wires is given for copper and aluminum. So equal length means L aluminum is equal to L copper. Given data. Two wires of equal length of aluminum and copper having the same resistance. Resistance भी same है. So R aluminum is equal to R copper. Given data. Okay. So what we have to find, which of the two wires is lighter? मतलब हमें find करना है कि which one having lighter means lower mass. Okay, which one having lower mass? So consider the mass of aluminum is supposed to be MAl and mass of copper is supposed to be MCu. तो दोनों में से कौन कम है, ठीक है, वो find करना है. So first we just find the ratio of the mass. So हमें actually find क्या करना है, रेशियो ऑफ द मास. सपोज आप ये मान के चलो कि आपको फाइंड करना है रेशियो एम एल्यूमिनियम अपॉन एम कॉपर, आपको फाइंड करना है, ऐसा आप मान के चलो. तो अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है तो एल्यूमिनियम हेवी है, कॉपर लाइट है. अगर लेस देन 1 आता है तो फिर
कॉपर हैवी है और एल्यूमिनियम लाइटर है, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको ये रेशियो फाइंड करना है। सो दैट इज अ गिवन डेटा। नाउ अनदर सम डेटास आर गिवन टू, हेंस एक्सप्लेन व्हाई द एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रीफर्ड ओवर फॉर द ओवरहेड पावर केबल्स। पावर हेड केबल के एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों होता है वो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में देना है। ओके, एंड सम डेटास आर गिवन टू रो AL, रो CU. So rho AL, rho CU given here, and the relative density. So S copper is 8.9 and the S aluminum is 2.7. This all the data are given to us. Okay, let's we start with this one. First the given data. What is this R? R is equal to rho L upon A. So let's we start the solution from here. So rho L upon A for aluminum is equal to rho L upon A for copper. Out of this L सेम है तो L को निकाल दो, L सेम है तो L को निकाल दो। ओके, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। सो रो एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो, ठीक है। कुछ मिला नहीं तो इसको 1 लेते हैं। सेकेंड चलते हैं, मास का रेशियो फाइंड करना है। सो व्हाट इज द मास रेशियो? लेट्स वी राइट हियर, मास रेशियो फाइंड करना है तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर फाइंड करना है, तो वही लेके चलते हैं। अगर ये कहीं पे इसका यूज आता है तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास मीन्स व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास मीन्स व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे रख देते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल रो है लेकिन रो इस यहाँ पे रेजिस्टिविटी में लिया है, तो फिर आप डेंसिटी को कैपिटल D ले लो। सो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। बट वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। व्हाट इज वॉल्यूम एक्चुअली? एरिया इनटू लेंथ। तो आप इसकी इक्वेशन का यूज में यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे रख दो एरिया इनटू लेंथ। ओके, सो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर। लेकिन लेंथ तो सेम ही है तो उसको कैंसल आउट करो यहाँ से, तो ये कैंसल आउट किया। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, ये तो यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं? एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे वो रिप्लेस करो और डेंसिटी को आप S दिया हुआ है तो डेंसिटी क्या होती है? सो डेंसिटी इज इक्वल टू S इंटू 10⁻³ that is very well known equation. Specific density multiplied by 10⁻³ that is a density. So density को भी replace करो तो finally what you get here? So mass of aluminium upon mass of copper is equal to density को इस equation से replace करो। So S of aluminium into 10⁻³ upon S of copper into 10⁻² multiply by area of aluminium upon area of copper. Area of aluminium upon area of copper is equal to rho of aluminium upon rho of copper. Rho of aluminium upon rho of copper. 10⁻³ कैंसल आउट हो गया तो फिर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा देखो, S aluminium into rho aluminium upon S copper into rho copper. तो रेजिस्टिविटी नॉन वैल्यू है ना, यहाँ पे रख दो, S नॉन वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो आप इसका आंसर फाइंड करो फाइनली। सो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन mass of copper. After putting this value you get this answer. Your answer is 0.46. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.46। अगर आप रखते हो तो कैलकुलेशन होमवर्क में करने, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आया 0.46। तो लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1। सो मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मास ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन मास ऑफ कॉपर फॉर द सेम रेजिस्टेंस। फॉर द सेम रेजिस्टेंस मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द मास ऑफ केबल। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही रखा है तो यहाँ पे हम क्या नोट लिख सकते हैं? सो फॉर सेम रेजिस्टेंस mass of aluminum is less than the
मास ऑफ कॉपर, मतलब कि एल्यूमिनियम का मास सेम रेजिस्टेंस के लिए कम रिक्वायरमेंट है और कॉपर के मास की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप पावर केबल्स की बात कर रहे हो, आप ऐसा सोचो कि पावर केबल्स है, आपको सेम रेजिस्टेंस के लिए पावर केबल इस यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पावर केबल आपने रखे, सपोज यहाँ पे ऐसे आपने पावर्स केबल रखे, एक कॉपर का रखा है, एक एल्यूमिनियम का रखा, दोनों केस समझाता हूँ। आपने यहाँ पे दो केबल्स रखे, एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे सेम ही रखना है, तो रेजिस्टेंस सेम रखना है, तो किसका मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉपर का मास ज़्यादा है, मतलब उसका बेंडिंग ज़्यादा होगा। एल्यूमिनियम का मास कम है, मतलब उसका बेंडिंग कम होगा। अगर आपने ये से यहाँ पे दो वायर रखे हैं, तो अगर दोनों ही बेंडिंग तो दोनों में होने वाला है, यहाँ पे बेंडिंग तो दोनों में, क्यों, दोनों में पे मास है तो उसका बेंडिंग तो होगा ही। तो अगर एल्यूमिनियम वायर ऐसे कुछ होता है तो फिर अगर आप एल्यूमिनियम के वायर को कुछ ऐसे करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे फिगर थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ हो गई, ठीक है, तो फिर कॉपर वायर में ऐसा हो जाएगा, देखो ठीक है। अगर आप ऐसे रखते हो वायर को तो दोनों ही बेंड हो जाएंगे, तो एल्यूमिनियम का बेंडिंग ये होगा और कॉपर का बेंडिंग ये होगा, मतलब कि कॉपर में बेंडिंग ज़्यादा रहता है in comparison of aluminium. Okay, so here aluminum wires are more preferred than the copper wire in a overhead cables, so that is the reason. Okay, so here this is the reason. So aluminum wires are more preferred in overhead cables. ठीक है, यही रीज़न है। इसे अगर कोई ऐसा करते हो तो आपको ऐसा बेंडिंग हो जाएगा, तो फिर एल्यूमिनियम वायर को ज़्यादा प्रीफर करते हो ओवरहेड केबल्स में। सो दैट इज़ द रीज़न। सो नोट डाउन दिस एग्जांपल इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन. Okay guys, let me discuss one example which is based on Ohm's law. It is from the textbook, example number 3.17. As per the Ohm's law, resistance is given by V upon I. Okay, this is the equation. What conclusion can you draw from the following observation on a resistance which is made by the manganese? Okay, manganese की alloy से resistance बना हुआ. So actually this all this table is given in our textbook. See, this current is changes 0.2, 0.4 and everything. Similarly, voltage measured over here, there's also changes. If you find the resistance for all these cases, so this resistance is not given. Okay, so by the calculation, if you get this resistance, then you get this type of answer. See, I am just calculating this answer already, and I am just writing here. So you getting this all this answer when you calculate. So this answer is approximately near to 19.7. This resistance is almost constant. See, it is not exactly constant, but it is almost constant. So by this from this table, from the calculation of the resistance, this you gives the resistance of this wire, whatever you used here, that's what actually approximately 9.7 ohm. Okay, that is approx answer, but approx it is same. So we can say that this resistance, okay, we conclude here this resistance is obeys the Ohm's law properly. So how we conclude that the Ohm's law is valid through with the high accuracy, and the resistance of alloys nearly constant. And how much it is constant? Near about 9.7 ohm. See, all this answer is nearly 19.7 ohm. Okay, at all currents, for all currents this answer is approximately same. So that is a very simple conclusion, and we have to note here. Okay, so if you just give us, if you have some data about the current and voltage, then you just gives your answer by this way. ओके मतलब आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, अगर वो सेम आता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है. अगर वो सेम नहीं आता है, मतलब वेरी होता है, मतलब वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है. ठीक है, क्योंकि एज पर द ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज वन कांस्टेंट. ओके, सो नोट दिस एग्जांपल इन योर बुक्स.